Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shehzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester, BBA Honors third semester, and for MBA second semester for the course of Economic Analysis. Today's lecture contents are policies to combat unemployment, especially in case of developing countries. Before starting today's lecture, let's take a review of the previously discussed lecture related to this topic. In the previously discussed lecture, we have studied the concept of unemployment in detail. We have also studied the types of unemployment, that is, frictional unemployment, structural unemployment, and cyclical unemployment. Furthermore, we have also studied the concept of full employment and natural rate of unemployment. Moreover, we have also studied the concept of Okun's law, or you can say that the economic cost of unemployment. In the recently discussed lecture, or you can say that in the previous lecture, we have studied the various causes of unemployment, especially in case of developing countries. अगर आप याद करें तो हमने पिछले 2 लेक्चर में कॉजेज़ डिस्कस किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वेरियस कॉजेज़ हमने डिस्कस किए हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबब बनते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर पॉइंट्स, और यू कैन से डैट फर्दर पॉलिसीज़ that can help to reduce unemployment, especially in the developing countries. These policies can also help in case of developed country as well, because developing and developed world both are the victims of unemployment, but maybe at a different rates. So let us start with the definition of unemployment in brief. A person who is more than 16 years of old, who is able to work and seeking for job for at least 4 weeks ago but failed to get job, it will be considered as unemployed. So unemployment is measured by the following formula. Unemployment rate is equal to number of unemployed डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100. हमने प्रीवियसली डिस्कस लेक्चर में अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को काफ़ी डेप्थ में स्टडी किया है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने ब्रीफ सी डेफिनेशन लिखी है. हम प्रीवियसली इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा हमने टाइप्स भी डिस्कस कर ली थी, और जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो कॉजेज़ थे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सबब कौन से कॉजेज़ बनते हैं. तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है. पॉलिसीज़ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. There are 2 main strategies for reducing unemployment. There are 2 main strategies for reducing unemployment. First one is demand side policies to reduce demand deficient unemployment, or you can say that unemployment that is caused by recession. Recession means you can say that fall in real GDP, और यू कैन से डैट यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी आप मेंशन कर सकते हैं. तो डिमांड साइड पॉलिसीज़ टू रिड्यूस डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. एंड सेकंड वन इज़ सप्लाई साइड पॉलिसीज़ टू रिड्यूस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये मोस्टली डेवलप्ड कंट्री यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने के लिए. तो हम यहाँ पे 2 तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो स्टडी करेंगे. एक डिमांड साइड पॉलिसीज़ होंगी जो डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होंगी,
और यू कैन से डैट के साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए जो हेल्पफुल होंगी उन्हें हम डिमांड साइड पॉलिसीज़ बोलेंगे। और दूसरा ये कि सप्लाई साइड पॉलिसीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, या आप कह लें कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हेल्पफुल होंगी। ये स्टडी करेंगे हम। अ क्विक लिस्ट ऑफ पॉलिसीज़ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, एक छोटा सा हम एक आपके सामने एक लिस्ट स्क्रीन पे शो हो रही है। दैट विल हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, कटिंग इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए जो है इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सकता है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे आप ये देखें ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। आप देखें इंटरेस्ट रेट के कम होने से कंज्यूमर विल स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरेस्ट रेट अगर हमने कंजम्पशन, अगर आप याद करें हमने कंजम्पशन और सेविंग के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, तो इंटरेस्ट रेट के कम होने से कंजम्पशन बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट के कम होने से कंज्यूमर विल स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन द सेम वे इन्वेस्टर विल आल्सो स्पेंड ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स। देखें ना, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा इट मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है। इंटरेस्ट रेट कम होगा इट मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है। जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम होगी इन्वेस्टर विल बोरो मोर मनी, मोर कैपिटल, ठीक है। एंड देयर विल बी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लेवल, जिससे इन्वेस्टमेंट लेवल में इजाफा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट लेवल में इजाफा होने से, ठीक है, आप कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, और अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होने का मतलब है रियल जीडीपी में इजाफा होगा। रियल जीडीपी में इजाफा होने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ मॉनेटरी पॉलिसी विल वर्क। जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट के कम होने से कंज्यूमर विल स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वेस्टर विल आल्सो स्पेंड मोर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स, ठीक है। आप कह सकते हैं फंड्स जो है वो ज़्यादा बोरो करेंगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम होने से इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ है, कंजम्पशन में भी इजाफा हुआ है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में भी इजाफा होगा। और आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा होने से जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा। इन्वेस्टमेंट में इजाफा होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ सकती है। अनदर पॉलिसी इज फिस्कल पॉलिसी, कटिंग टैक्सेस टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। अब देखें फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए टैक्सेस को कम कर दिया जाए, मुख्तलिफ टैक्स फ्री जोन बना दिए जाए, या टैक्स को ओवरऑल टैक्सेस को कम कर दिया जाए। जब टैक्सेस कम होंगे, ठीक है, तो कंजम्पशन, आप देख सकते हैं कि कंजम्पशन में भी इजाफा होगा, और क्योंकि आपकी इनकम बढ़ जाती है ना, टैक्सेस कम होने से इनकम कम बढ़ जाती है, कंजम्पशन में भी इजाफा होगा और इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। अगर आपने बिजनेस टैक्सेस भी कम किए हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा, तो कंजम्पशन में भी इजाफा होगा, इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। डेट विल बूस्ट एग्रीगेट डिमांड मीन्स रियल जीडीपी में इजाफा होगा। तो रियल जीडीपी में इजाफा होने से जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। अगर आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे ग्वादर को जो है वो टैक्स फ्री जोन बनाया गया है, वहाँ पे टैक्सेस नहीं लगाए ताकि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। क्या एम है? ताकि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो ओबियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ठीक है। यही टारगेट किया गया ना कि ग्वादर में जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इसीलिए टैक्सेस जो है वो कम लगाए हैं। सो इट इज़ अनदर टूल टू कम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड policies to reduce unemployment is education and training to help reduce structural unemployment, ठीक है। आपकी एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो,
स्किल्ड लेबर हो मतलब। अब जब आप स्किल्ड होंगे तो आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकेंगे। मीन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए आती है ना कि आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करते हैं तो आप में स्किल की कमी होती है, इसलिए आपको अब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। तो जब आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग होगी उसकी के मुताबिक, तो फिर आपका जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको फेस करना पड़ता है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग हो, आप स्किल्ड लेबर हों, ठीक है, तो आप जल्दी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह मैंने बताया था कि अगर अनएम्प्लॉयड हो, अनएजुकेटेड पर्सन हो और लैक ऑफ ट्रेनिंग हो, तो वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर आता है इंडस्ट्रीज में तो जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होगा, उसे स्किल्ड की एजुकेशन की ज़रूरत होगी, टाइम लगता है। जितनी स्किल कम होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसे इंडस्ट्री सेक्टर में अब्जॉर्ब होने के लिए। तो अगर यही एजुकेशन होगी, उसे ट्रेनिंग होगी, स्किल्ड लेबर होगी, तो वो जल्दी जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में एब्जॉर्ब हो सकेगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ वन इज़ जियोग्राफिकल सब्सिडीज टू एनकरेज फर्म्स टू इन्वेस्ट इन डिप्रेस्ड एरियाज़। अब ये है कि जियोग्राफिकल वाइज सब्सिडीज़ दी जाएं ऐसे एरियाज़ जो डिप्रेस्ड हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, उनको सब्सिडीज़ दी जाएं। जैसे अभी डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां, ठीक है, राजनपुर वगैरह को भी जो है वो सब्सिडीज़ दी गई कि डेरा गाजी खां को दी गई है जनूबी पंजाब को, कि वहाँ पे जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएँ बावलपुर। वो डिप्रेस्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे सब्सिडी दी गई हैं कि जो फर्म्स जिन्होंने बनानी है, इंडस्ट्रीज़ बनानी है, उनको इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन दी गई है, उनको गैस में कंसेशन दी गई है, इन ऑर्डर टू ताकि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सके वहाँ पे। जब फर्म ज़्यादा बनेगी, इंडस्ट्री ज़्यादा बनेगी, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होगा और वो डिप्रेस्ड एरियाज़ को कवर कर सके। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बैकवर्ड एरिया से लोग उठकर लाहौर, कराची मूव करते हैं ताकि वहाँ पे जो इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पे हम काम कर सकें, ठीक है, और वहाँ पे फिर जो है आप कह लें कि ओवर पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है, वहाँ पे भी फिर अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाता है। तो उससे एक बचने का एक बेहतर तरीका सोल्यूशन ये है कि जो डिप्रेस्ड बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे जाके वहाँ पे सब्सिडीज़ दी जाएँ, वहाँ पे टैक्स फ्री जोन बनाए जाएँ ताकि वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ लगें, ताकि वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो और फिर वहीं पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा हो और वहाँ से लोग उठकर जो है वो अर्बन एरियाज़ में, मतलब यहाँ कह लें कि मॉडर्न आप कह लें कि सिटीज़ में मूव ना करें बल्कि वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये भी एक बेहतर पॉलिसी है। अनदर पॉलिसी टू कम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लोअर मिनिमम वेज टू रिड्यूस रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली जब वेज लेवल सेट करते हैं तो इस पे भी जो है प्राइस आप कह लें कि मिनिमम प्राइस लेवल सेट कर दिया जाता है, मिनिमम वेज लेवल सेट कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा वेज देनी है। वो डिमांड सप्लाई से ऊपर होता है, जो डिमांड सप्लाई से वेज इक्विलिब्रियम निकलता है उससे ऊपर सेट कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू सिक्योर द आप कह लें कि लेबर क्लास, पुअर क्लास। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट है कि मिनिमम वेज ना सेट की जाए, तो डिमांड एंड सप्लाई से जो बनता है उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है वो एब्जॉर्ब हो सकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लेबर, अगर आप देखें कि वेजेस को डिटरमिन करें तो लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई से डिटरमिन होनी चाहिए, मतलब फ्री मार्केट होनी चाहिए, लेबर फ्री लेबर मार्केट होनी चाहिए। यहाँ पे ये इस पॉलिसी का ये मकसद है कि फ्री लेबर मार्केट होनी चाहिए, क्योंकि फ्री लेबर मार्केट होगी मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अब्जॉर्ब हो सकेगी। लेकिन ऑब्वियसली उस पर वेज रेट जो है वो कम आएगा, क्योंकि अगर वेज रेट बढ़ाना होगा तो उतना ही पीछे आना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेस सप्लाई होगी उतनी ही। लास्ट वन इज़ मोर फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट्स टू मेक इट ईजियर टू हायर एंड फायर वर्कर्स। फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट का मतलब यही है कि डिमांड एंड सप्लाई का रोल होना चाहिए, लेबर डिमांड लेबर सप्लाई का रोल होना चाहिए। उससे क्या होगा, लेबर इजीली हायर भी फर्म्स करेंगी
और अगर निकालना चाहें तो ईज़िली निकाल भी सकेंगी। तो ये पॉइंट हैं। दीज आर द पॉलिसीज़ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। Further policies to reduce unemployment will be discussed in the next lecture. If you have any query, you can comment on my YouTube channel. You can also comment me on Google Classroom. My students can also discuss it with me during class session on Zoom. Thank you so much, students. Stay blessed. Allah Hafiz.